The road is my friend, and the road is my home. The road is my friend, and I'll drive down the highway at midnight, and I got a thing to lose. I sing it. आप सुन रहे हैं U107 कैसे हो पाकिस्तानी? वॉशिंगटन से आप सुन रहे हैं U107 आप सबको हमारा सलाम। U107 खुशामदीद। आप सबको हमारा सलाम। गाते रहे 107। आपकी याद आती रही रात भर, रात भर। चश्मे नम मुस्कुराती रही रात भर। आपकी याद आती रही रात भर, रात भर। आपकी कोई दीवाना गलियों में फिरता रहा, कोई दीवाना गलियों में फिरता रहा। कोई आवाज आती रही रात भर, रात भर। चश्मे नम मुस्कुराती रही रात भर। आपकी याद आती रही रात भर, रात भर।
24/7 Washington DC से उर्दू रेडियो U107.net. Welcome to J107 Justice Radio. Support artists, not corporations. This is Rockathon. U107. This is U107 Urdu Radio with a global beat. live from Washington, D.C. At a time when misinformation is all too common on social media, we take great pride in bringing you the news that matters, that impacts your family, news you can trust. Broadcast journalists bring you the facts, covering the stories breaking in our community and across the globe. Text radio to 52886 and let Congress know you depend on local journalism. This message furnished by the National Association of Broadcasters. U107. U107. So I wanted to talk with you and your mom today, Lily, because of some of the changes your friends and teachers have seen in you lately.
And along with the incident the other day, you were with Derek when he was caught selling marijuana. Yeah, he was selling it. Honey, we know. But we care about you and want to know what's going on. That's right. We'd like to understand it better and see how we might help. And if weed is a part of it, we want to make sure you know about the negative consequences for someone your age. So, can we talk? Learn more at underagedrinking.samhsa.gov. Washington DC से उर्दू रेडियो 24/7 U107.net. U107. Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class. 107 Every 2 minutes, an American is sexually assaulted. The majority of victims know their attacker. It could be your friend, your neighbor, or someone you met at a party. If you said no, it's rape, and it's a crime. This is Christina Ricci with RAIN. Call the National Sexual Assault Hotline today at 1-800-656-HOPE or visit RAIN.org. That's RAINN.org. Brought to you by RAIN and this station. U107. I grew up in a normal home in a normal town. All of a sudden, everything got crazy. I didn't talk to anybody about the way I was feeling. I was scared and I was alone. I started drinking. I just didn't want to deal with what was happening in my life. I knew about AA, but thought I was too young. I found out I was wrong. If you have a problem with your drinking, why don't you give AA a call? Visit AA.org for more information and download the Meeting Guide app to find a meeting near you. U107 उर्दू रेडियो Washington DC गाते जाओ बोलते जाओ मुस्कुराते जाओ हंसते जाओ U107.net U107.net ताके रहे हो भाई ठीक के रहे हो अजब के रहे हो भाई U107. U107. LFX Films presents भाई कहने को तो हम सब भाई भाई हैं। तो वक्त आने पे पता चलेगा क्यों नहीं लेके जाते भाई। आज के बाद से हम तुम्हारे साथ कोई बिजनेस नहीं करेंगे। मां मुझे थोड़े से पैसे चाहिए भाई। बकवास बंद करो। तो ये भी अब हम तुम्हें बताएंगे। अपना सामान उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे तो शहर में कोई नहीं जानता। भाई भाई उड़ा दे। बताओ मैं क्या करूं? भाई You are listening to U107. U107. Urdu radio with a global beat. Live from Washington, D.C. कैसे हो पाकिस्तानी? आज इमरान बात कर रहे हैं पाकिस्तानी अमेरिकन गुलकार फैसल अख्तर के साथ। U107 आपका नाम क्या है?
बोलो पाकिस्तानी। यानी वले मखमकेतर बोलो पाकिस्तानी। बोल पाकिस्तानी। बोल पाकिस्तानी। सत श्री अकाल जी। बोलो पाकिस्तानी। U107 मैं ढूंढता रहता तेरा निशान, दर बदर में फिरता यहाँ वहाँ, तू ही जाने तेरा है ठिकाना कहाँ, मैं भी न जानूं मुझको है जाना कहाँ। गुजारे पल जो साथ थे, आगे की करते बात थे, छोड़ेंगे ना कभी किसी को, बातें करते दिन रात थे, लगता है ये कल की बात है कि जब हम साथ थे। U107 आप सुन रहे हैं U107.net और ये है बोलो पाकिस्तानी U107.net और कैसे हो पाकिस्तानी.com पर। मेरा नाम है इमरान सिद्दीकी और आज हम बात कर रहे हैं फैसल अख्तर से, जो टेक्सास में मुकीम एक पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, एक स्पोर्ट्समैन हैं, एक क्रिकेटर हैं, रह चुके हैं और साथ में वो सिंगर, सॉन्ग राइटर, म्यूजिशियन, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर, एंटरप्रेन्योर और बहुत सारी और चीज़ें कर रहे हैं और हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आजकल उनकी क्या मसरूफियात है। Faisal, thank you so much for joining me. Thanks for having me. So, ये मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया, इसमें मैंने कोई कमी पेशी की या मैंने कोई गलत बोला, मुझे बताएं। I think कुछ ज्यादा ही बोल दिया आपने मेरे ख्याल से। ज्यादा बोल दिया, मगर इन सब के पीछे सच्चाई तो है, क्योंकि you have been into cricket, you have been an entrepreneur, and then फिर अब आप म्यूजिक कर रहे हैं काफी अरसे से, गाने लिख रहे हैं, गा रहे हैं, रिकॉर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है यार, कुछ बताएं। बस मेरे लाइफ फिलॉसफी ये है, यू हैव ओनली वन लाइफ टू लिव, तो नो रिग्रेट्स, जो आपने करना है आप करें, जो भी अच्छी तरह जिस चीज को कर सकते हैं उसको करें। डोंट वेस्ट योर टाइम इन लाइफ, अल्लाह ओनली गिव्स यू सो मच लाइफ, तो जो आपके पास टाइम है उसको यूटिलाइज करें, उसको अच्छी तरह से यूज करें अपने लिए। ओके, आप डैलस में। तो किस तरह से आपका करियर स्टार्ट हुआ? आई मीन, आई डोंट नो इफ यू वांट टू गेट इनटू योर एंटरप्रेन्योरशिप और डायरेक्टली जंप इनटू बिजनेस को छोड़ के म्यूजिक पर आ जाएं, तो अब थोड़ा सा अगर बताएं कि हाउ डिड यू स्टार्ट इन अमेरिका एंड हाउ डिड यू कम इनटू म्यूजिक? देखें, मेरी जो इनिशियल स्टोरी है वो तो इट्स वेरी कॉमन टू मैनी ऑफ अस एक्सपैट्स। अब तो यहाँ पे हम अमेरिकन हैं, तो मैं एज अ स्टूडेंट आया था, लेकिन इवन जब मैं पाकिस्तान में था, थोड़ा वो तो बहुत ही छोटी उम्र में थी, लेकिन वहाँ पे भी मैंने कुछ म्यूजिक में शुरू किया था, बट आई वाज रियली यंग, तो उस वक्त उस जमाने में तो मैं 16-17 साल का ही था, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा कराची में स्टेज पे थोड़ा बहुत शुरू किया था गाना, फिर यहाँ आके पढ़ाई में लग गए तो इतना नहीं हुआ, लेकिन एवरी ईयर आपको पता है, आप भी कॉलेज में रहे होगे यकीनन, तो पाकिस्तान कल्चरल सोसाइटी, इंटरनेशनल क्लब वगैरह हम लोग कोई ना कोई इवेंट रखते थे कल्चरल, तो उसमें हमेशा पाकिस्तानी कल्चरल इवेंट में मैं परफॉर्म करता था, क्योंकि उस जमाने में तो बहुत ही कम लोग म्यूजिक में थे पाकिस्तानी, तो थोड़ा थोड़ा वहां से किया, फिर आफ्टर ग्रेजुएशन फिर उसको जब थोड़ा सा टाइम मेरे पास, लाइफ थोड़ी बहुत सेट हो गई, तो उसके बाद उसको सीरियसली शुरू कर दिया था, फिर कॉन्सर्ट्स एंड ऑल दैट एंड सिंगिंग विद बैंड्स एंड ये सब शुरू हुआ, बस उसी को लेके आगे बढ़ते गए। फिर इवेंचुअली आई बिकेम अ सिंगर सॉन्ग राइटर, अपने गाने लिख के, अपने गाने प्रोड्यूस किए और कर रहे हैं अभी भी, इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। या बिकॉज आई रिमेम्बर हमारी मुलाकात आज से कोई प्रॉब्ली 10-15 साल पहले हुई थी डैलस में। हाँ, राइट। जब एंड देन वी मेट एंड आप उस वक्त बहुत सारी चीजें कर रहे थे। हाँ। एंड बट देन आई हर्ड, आई थिंक 2018 या 2019 में मैंने सुना आपका पहला गाना जुदा।
Right. Is that correct? It was 2018 or 2019? एक्चुअली मैंने इससे भी पहले अपनी एक एल्बम रिलीज की थी, उसका नाम था तुमसे। अच्छा। वो पाकिस्तान से ही मैंने किया था, और जमाने में जब ARY म्यूजिक चैनल पाकिस्तान में होता था और द म्यूजिक के नाम से, और पता नहीं, तो उसमें मेरे दो, एक्चुअली 15 साल से पहले की बात है, जब एक मेरा गाना था तुमसे मिला हूँ कहाँ यार नहीं, वो पाकिस्तान में चार्ट पे भी आया था। और उसके बाद एक गाना मैंने और रिलीज किया था, यादों का सिलसिला, शायद आपने सुना हो वो। उसके बाद से बस पॉज हो गया बीच में, फिर मैंने वीडियोस बनाने थोड़े दिन के लिए छोड़ दिए थे, कुछ लाइफ वाज गेटिंग सीरियस, तो उसके बाद थोड़ा गैप आया। फिर दोबारा मैंने जुदा रिलीज किया 2019 में या 18 में, मुझे इतना याद नहीं आ रहा, आई थिंक 19 होगा। और उसके बाद से फिर लाइन लगा दी, उसके बाद काफी गाने रिलीज हुए। लाइन लगा दी इज द राइट वर्ड, बिकॉज मुझे याद है वो गाना, आई थिंक आपने मुझे भेजा, मैंने वो सुना और मैंने बोला यार बड़ा जबरदस्त गाना है, नाइस, एंड देन उसके बाद एवरीवन थॉट कि अच्छा फैसल लगता है कि सोने चले गए, एंड देन उसके बाद जो धड़ गाने निकले हैं, आई मीन इट इज जस्ट अनबिलीवेबल। थैंक यू। If I would say Juda would be your takeoff song, would that be correct? Yeah, I think that's my revival sort of. In fact, थोड़ा ये था कि जुदा ने मुझे दोबारा से ना स्टार्ट करवाया, कि फिर वही पैशन था। मैं ऑब्वियसली मैं स्टेज पे तो बहुत सालों से गा रहा हूँ, 20-25 साल से ज्यादा हो गए मुझको, परफॉर्मिंग एट वेरियस इवेंट्स, पाकिस्तान डे परेड शो, ये वो 14 अगस्त, private concerts, लोगों के, all kinds of events, paid concerts, तो वो तो चल ही रहा था। But then मेरे अंदर ये था कि यार मैं दूसरे लोगों के गाने तो गा ही रहा हूँ, I want to do something कि मैं अपना भी गाना, कि ऐसा कोई चीज करो दुनिया में कि लोग कहें यार ओके ये मैं फैसल अख्तर का गाना गा रहा हूँ, तो हम, that was the passion that drove me कि कुछ अच्छे से अच्छा करना चाहिए, कुछ करो ऐसा कि लोग तुम्हारा गाना गाएं। मैं लोगों के गाने तो सभी गा रहे हैं, बट डू समथिंग, मेक अ डिफरेंस, नो मैटर व्हाट हैपेंस, एटलीस्ट यू कैन से कि यार मैंने भी कुछ म्यूजिक में कंट्रीब्यूट किया था। दूसरे लोग आपके गाने गा रहे हैं, आई कैन टेल यू पिछले 3 दिन से तो मैं तो गा रहा हूँ जुदा, एंड देन जुदा मैंने आपको उसकी कहानी बताई थी कि उसमें जो बोल हैं, जो आप यू टोल्ड मी दैट आपने वो गाना लिखा था, उसके अंतरे आपने लिखे थे। उसके अंतरे मैंने लिखे, राइट। मैं आपको कह रहा था कि ये तीनों चीजें जो हैं उसमें, वो मुझ में तो उसकी कमी है, तो मुझे वो गाना हिट हुआ था, बिकॉज इट्स मेरी नजर में वो गाना एक बहुत ही सिंसियर आदमी गा रहा है, जिसने धोखेबाजी और बेवफाई नहीं की है, सो ऐसे लोग बड़े कम मिलते हैं आजकल के जमाने में, एंड दैट सॉन्ग वाज वेरी नाइस। शुक्रिया। तुझसे खफा हुए हम, क्या तुझसे जुदा हुए हम, क्या कभी बेवफा हुए हम, बता। मगर उसके बाद अगर मैं जंप करूं एकदम से जीना के ऊपर, फास्ट फॉरवर्ड टू जीना, आई थिंक 3-4 साल मैंने जंप कर दिए, बिकॉज बीच में मुझे करेक्ट कर, मैं आपको बताऊं, जो मेरे सामने जो है वो है जुदा से पहले अलविदा है, राइट, जुदा के बाद अलविदा है। अच्छा, जुदा के बाद अलविदा है, फिर गुलाबी आंखें, नहीं फिर वो है जाने वाले, हाँ, अपना उसके बाद मैंने अली पंजाबी नगमा किया था, फिर एक सूफी नगमा किया, इश्क साइयां दा सच्चा है। उसके बाद एक मैंने गाना किया था तुझे आसमान से, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, तुझे आसमान से है रब ने मेरे लिए बनाया, पास आ करके बनाया। उसके बाद और बहुत सारे हैं, तो नहीं करना चाहता आपके ऑडियंस को, बट इफ यू गो ऑन माय स्पॉटिफाई और यूट्यूब चैनल, यू विल सी ऑल ऑफ दोज। अच्छा, is there a website faisalakhtar.com or something like that? Yes, but there is not updated. I mean, mainly जो मेरा है, focus वो Spotify पर है और YouTube. I think YouTube पे मेरा पूरा home page है, तो you can just even if you Google me,
तो मैं आप डालेंगे then my whole lineup shows up in Google. That is true. That's what I did. मैंने सिर्फ Google किया सब कुछ आ गया. मगर listeners के लिए listeners जा सकते हैं youtube.com/@FaisalAkhtarOfficial. Right. Which is FAISALAKHTAR official. U107. कभी बेवफा हुए हम बता 107 आपके साथ U107 आपका नाम क्या है? बोलो पाकिस्तानी. يعني ولا مخمخيتا बोलो पाकिस्तानी. बोल पाकिस्तानी. बोल पाकिस्तानी. सत श्री अकाल जी. बोलो पाकिस्तानी. U107 अब सुन रहे हैं U107 कैसे हो पाकिस्तानी. वॉशिंगटन से. अब सुन रहे हैं U107. अब सबको हमारा सलाम. U107 खुशामदीद. अब सबको हमारा सलाम. गाते रहे 107. आपका फेवरेट है तुझे आसमान से. हाँ, तो वो गाना मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वो बड़ा पॉप और सॉफ्ट पॉप करके वो गाना है. जैसे जब मैं ग्रो अप हो रहा था तो मतलब हम नाजिया हसन, ज़ोएब हसन इस तरह के गाने सुनते थे बचपन में, तो उस पे थोड़ा उस किस्म की थोड़ी पॉप फील है. जुनैद जमशेद टाइप, यू नो, दैट काइंड ऑफ अ फील व्हिच इज माय फेवरेट जॉनरा. सो यू नो, आप सुनेंगे तो आपको पसंद आएगा. या 80s and 90s का जो, and especially late 70s का भी, you're right, it was a different kind of music. नाजिया and आलमगीर and all different गाने थे. उसकी कमी है आजकल. Right. तुझे आसमान से है मेरे लिए रब ने उतारा, तेरे जैसा प्यार मुझे ना होगा किसी से दोबारा. तुझे आसमान से है मेरे लिए रब ने उतारा, तेरे जैसा प्यार मुझे ना होगा किसी से दोबारा. आपका एक और गाना है जीना. Yeah. I think बॉसमैन के साथ आपने किया, जो कि स्टूडियो लाइव प्रोडक्शंस कर रहे हैं कराची से मेरे ख्याल से. लाहौर से. तो इसके पीछे क्या कहानी है? बिकॉज ये गाना जो है जीना, ये आज का, ये गाना कल का भी है, परसों का भी है और आने वाले कल का भी लगता है. ये इट्स लाइक एवरग्रीन सॉन्ग. तो इसके पीछे कहानी क्या है? कहानी है कि मैं हमेशा अपने आप को अपनी लिमिट्स पुश करता हूँ. तो मैं मेरे सॉफ्ट गाने भी हैं, मेरे भंगड़े गाने भी हैं, मेरे डांस नंबर, दिस दैट, ऑल दोज आर देयर. टू डू समथिंग जिसमें थोड़ा नई नस्ल के लिए और कटिंग एज कोई साउंड, ऐसी चीज हो जो एटिपिकल और देसी म्यूजिक से, जो कि आप उसको क्लासिफाई ना कर पाए कि यार ये तो इट साउंड्स लाइक फला फला. तो मैं ऐसी चीज करना चाहता था कि इट साउंड्स टोटली डिफरेंट, मे बी अ लॉट मोर वेस्टर्न देन ईस्टर्न. तो फिर ये जीना गाना जो है ना, ये उस कैटेगरी में, उस मोल्ड में फिट होता है कि ये किसी चीज में फिट नहीं होता. तो उसका अपना ही एक वो है फ्लेवर, और मुझे भी बहुत शदीद पसंद है ये गाना. आई होप के जो लिसनर्स हैं वो जाके चेक करें. इट इज अमेजिंग. बहुत ही इसका गाड़ी में क्रैंक अप करके सुनने वाला गाना है. वेल, हम लिसनर्स को इतना दूर जाने नहीं देंगे क्योंकि हम अभी चला रहे हैं उसको. अच्छा, ओके, वेल, हाँ, ग्रेट. गुजारे पल जो साथ थे, आगे की करते बात थे, छोड़ेंगे ना कभी किसी को, बातें करते दिन रात थे, लगता है ये कल की बात है कि जब हम साथ थे. जीना
कंपोज कैसे हुआ, लिखा किसने इसको? हाँ, तो ये मेरे इसमें मैं इतना ज़्यादा क्रेडिट में नहीं लूँगा। मेरे बहुत अच्छे मेरे दोस्त और मेरे साथ जब मैंने बहुत गाने आपस में हम लोगों ने मिलके किए। इनका नाम है एहसन परवेज। तो ये इनफैक्ट ये काफ़ी मशहूर लोगों के गाने भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आतिफ असलम एंड वेरियस बड़े बड़े आर्टिस्ट जो कि गाने पे शायद इनको इतना क्रेडिट ना देते हो, उनके लिए वो कंपोज करते हैं। और इन्होंने अभी पिछले साल एक यूट्यूब पे एक शो भी प्रोड्यूस किया था। तो एहसन ने और मैंने हमने कहा यार एक ऐसी चीज बनाए जो जरा नई हो, तो फिर हमने काफी इस पे बैक एंड फोर्थ किया, काफी इसको रिफाइन करके यहाँ पे पहुंचे। और वो तो एक अमेजिंग प्रोड्यूसर हैं, तो उनके साथ काम करने में बहुत मजा आता है। इनकी ये एहसन परवेज म्यूजिक प्रोडक्शन चला रहे हैं मेरे ख्याल से। That's what he does, yes. तो ये एहसन परवेज ने गाना लिखा आपके लिए? हाँ। अच्छा, वेरी नाइस। एंड म्यूजिक किसने कंपोज किया? म्यूजिक भी उन्हीं की कंपोजिशन थी ना, उसमें इनपुट मेरी होती है थोड़ी बहुत, लेकिन मेनली सारा अच्छा उसमें एहसन क्या था, वो बहुत ही एक टैलेंटेड शख्सियत है। ये तो बहुत ही कोई खतरनाक शख्सियत मालूम होते हैं, क्योंकि इन्होंने लिखा भी है और इन्होंने म्यूजिक भी इन्होंने किया। हाँ, तो वो काफी लोगों के साथ वो इतना काम करते नहीं लोगों के साथ, सिर्फ लाइक आतिफ एंड मे बी कुछ उमेर जसवाल एंड कुछ बड़े बड़े नामों के साथ ही वो करते हैं काम। एंड नाउ आई थिंक ही डज अदर स्टफ बट नॉट any commercial music like anything that you would have heard. I don't know बड़े बड़े क्या होता है, because I mean an artist is an artist, but yeah, that's बड़े नाम कुछ नाम बड़े हो जाते हैं, तो मगर the thing is कि अगर फैसल अख्तर का कोई नाम जानता नहीं है, that doesn't mean कि फैसल अख्तर के गानों में दम नहीं है, क्योंकि दम तो है। I mean मैंने तो I think कि अगर कोई पाकिस्तानी या कोई बंदा जो उर्दू जानता है या हिंदी जानता है, वो जीना सुने और वो उसके बाद कुछ महसूस ना करे, देन वो पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है फिर वो जी नहीं रहा फिर वो I know. तो वो I mean I personally love that track. It's a very cutting edge sound, right? आपकी ऑडियंस भी इसको सुन के बता सकती है कि ये कोई भंगड़ा या ये कोई सूफी, ये कोई इसको आप इस किसी कैटेगरी में क्लासिफाई नहीं कर सकते। ये टोटली डिफरेंट साउंड है। एंड एक्चुअली मैं अभी कुछ गाने मेरे और भी रिलीज होने वाले हैं, तो आप देखेंगे उसमें और डिफरेंट किस्म की चीजों में मैंने एक्सपेरिमेंट किया है और डिफरेंट किस्म के साउंड्स हैं। ये बहुत ही सुलझा हुआ गाना है। आई थिंक दैट इज अ न्यू कैटेगरी इन अ न्यू जॉनरा, कि ये सुलझा हुआ उर्दू। बिल्कुल, यानी कि जब मैं इसको घर में चलाता हूँ फुल वॉल्यूम में, तो घर में सारे बड़े और ज़ईफ, मुझे कोई बोलता नहीं है कुछ भी कि क्या बकवास चला रहे हो, इवन ज़ईफ लोग भी। सो समथिंग इज देयर ना, एंड एकदम से लोगों के कान घूमते हैं, ये क्या है? ये ना जो बात की है ना आपने इमरान, यही मेरा गोल है कि मेरा जितना भी म्यूजिक हो वो लोग को लगे कि डिसेंट, ऐसा कोई गंदे अल्फाज ना हो, जिसमें कोई ऐसी चीजें ना हो जो हम फैमिली के साथ नहीं सुन सकते या देख सकते। तो इट्स ऑल माय वर्क इज लाइक दैट। इनफैक्ट कई म्यूजिक वीडियोस हमने एडिट किए हैं कि मुझे कुछ सीन ऐसे लगे कि वो अच्छे ना लगे शायद व्यूअर्स को पाकिस्तान में व्हाटएवर, तो उनको, तो अब मेरा गोल हमेशा होता है कि आर्टिस्टिक वैल्यू हर चीज की बहुत हाई हो, और that's what you will find in Gina and other tracks too, अगर आप उसको देखें या सुने। मेरे लिए आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, मगर देखें गाना बाय डेफिनेशन कानों के लिए हम लोगों को आजकल देखना ज्यादा जरूरी है। मगर क्योंकि मेरा बिजनेस ही रेडियो का है, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही यूनिक गाना था है। एंड इसमें एक अच्छी फीलिंग है, इट्स अ गुड फीलिंग सॉन्ग। बिल्कुल जीना, इसमें एनर्जी बहुत है,
it you know, if you listen to it, it's a very energetic song and it makes you feel more energetic. जब वो गाना आपके ये वो गाना है जो आपके ऊपर ग्रो करता है. जैसे आप एक दफा सुनोगे आपको अच्छा लगेगा, दूसरी दफा सुनोगे थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, तीसरी चौथी दफा आपको कुछ नई नई चीजें इसमें सुनाई देंगी. 107 आपके साथ U107 U107 आपका नाम क्या है? बोलो पाकिस्तानी. يعني ولا مخمخيتا बोलो पाकिस्तानी बोल पाकिस्तानी. सत श्री अकाल जी. बोलो पाकिस्तानी U107 आप सुन रहे हैं U107 U107 कैसे हो पाकिस्तानी. वॉशिंगटन से. आप सुन रहे हैं U107. आप सबको हमारा सलाम. U107 खुशामदीद. आप सबको हमारा सलाम. गाते रहे 107. वो क्या मुश्किलात थी जो आपको फेस करना पड़ी अपना म्यूजिक, अपना आर्ट, अपने गाने सामने लाने के लिए? ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये इसका जवाब आई थिंक वो बंदा समझ सकता है जो कि मेरी तरह म्यूजिक कर रहा है. पाकिस्तान या इंडिया जो हमारी जो बेसिकली जो हमारी जो देसी मार्केट है उसमें आजकल इतना चीजें रिलीज हो रही हैं कि उसके अंदर आपको किस तरह नुमाया होना है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. अब जैसे 80s था, जो हमारे बचपन का टाइम है, उस जमाने में लेट्स से पाकिस्तान में एक ही चैनल या टीवी पे 2 चैनल होते थे. अब उस चैनल पे जो आ रहा है वो पूरा पाकिस्तान देख रहा है, भले वो अच्छा आ रहा है या बुरा आ रहा है, आप फेमस हो गए. ठीक है ना. शाम को आपका गाना चल गया, खबरनामे से पहले आप दुनिया ने, पूरे पाकिस्तान ने आपको देख लिया, आप इस्टेब्लिश हो गए. 90s में भी ये हुआ. आप देखें बड़े बड़े बैंड जो हैं, वाइटल साइंस, जुनून, फला जो भी थे, इनको बड़ी अच्छी एक्सपोजर मिली उस वक्त, बिकॉज उस वक्त भी कुछ सीन इंक्रीज हो रहा था. तो वो उस टाइम पे आए जिस वक्त उनको लोगों ने देखा. वो सारा टाइम मुझसे तो मिस हो गया. मैं तो पढ़ाई कर रहा था, उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में था तब. मैं भी. तो है ना. तो अब आजकल के जमाने में मीडिया इतना बढ़ गया है कि 250 चैनल्स होते हैं यार. उस पर आपका गाना आया, पता नहीं किसी ने देखा नहीं देखा, यू नेवर नो. उसके बाद यूट्यूब अब एक ऐसा चीज आ गई है जिसपे आपको थोड़ा सा वो हो जाता है कि यार अच्छा चलो आप यहाँ जाके देख लें. लेकिन वो लेवल जो एक जमाने में था कि यार आप पीटीवी गाना आ गया, पूरे दुनिया ने देख लिया, आप फेमस हो गए, वो अब हमको मैसर नहीं है. हालांकि मेरा जो इस वक्त जो करंट गाना है कहाँ ये पीटीवी के चैनल चार्ट्स पे नंबर 3 तक गया है अभी 3 महीने पहले. लेकिन अगर मैं आपको कहूँ तो आपने कहा मैंने तो देखा ही नहीं. तो द थिंग इज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि किस तरह, हाउ डू यू टेक योर म्यूजिक टू द मासेस. एज यू सेड योरसेल्फ कि भाई पैसा लगता है का नाम नहीं है तो क्या हुआ, गानों म्यूजिक में बहुत जान है. तो आई विश के और लोगों को भी ये पता लगे, लेकिन और लोगों तक मैसेज पहुंचाना आर्टिस्ट के लिए सबसे मुश्किल काम है आजकल. तो वहां पर हम आते हैं और स्पेशली जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि और जो इतना सारा निकल रहा है उसमें कचरा भी बहुत है. कचरा भी बहुत, उसके नीचे अच्छी चीजें भी दब रही हैं. राइट. बिल्कुल. तो इट्स जस्ट सो मच वॉल्यूम कमिंग आउट. तो दैट्स द थिंग, बहुत सारी चीजें आ रही हैं. Yeah, so we need to just filter out the good from the not that good. But with that said, कहाँ I mean, उसके ऊपर 2.3 मिलियन 2.3 मिलियन व्यूज आए हैं 8 महीने में. तो लोगों को तो पसंद आ रहा है ये गाना, चाहे पीटीवी चलाए या ना चलाए, या कोई और चलाए ना. पीटीवी ने चलाया, एक्चुअली पीटीवी ने चलाया. पीटीवी होम ने, लाइक आई सेड, पीटीवी होम पर ये नंबर 3 पे गया है गाना. बट आजकल जो पीटीवी की रीच है वो 80s 90s में रीच थी, वो नहीं है. अब आप टीवी खोलें तो हर आदमी ने अपना एक टीवी चैनल खोला हुआ है. तो इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू गेट द सॉन्ग टू द मासेस.
प्लस कुछ लोग होते हैं ड्यू टू जेलसी और व्हाट नॉट, दे डोंट वांट यू टू बी प्रमोटेड। वो ये भी एक चक्कर होता है हमारे यहाँ पाकिस्तानी मीडिया में। कोई बंदा देखता है ना, अगर सब लोग कुएं में फंसे हुए हैं, एक बंदा कुएं से क्लाइम करके ऊपर आ रहा है तो वो टांग खींच के उसको नीचे गिरा देते हैं। बिल्कुल। तो ये भी एक काफी होता है वहां पे। काफी इट्स जस्ट लिटिल बिट डिफिकल्ट टू गेट योर स्टफ आउट देयर। इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड उसी हवाले से हम उसमें कुछ किरदार अदा करना चाहते हैं। अगर आप नजर डालें इस वक्त पाकिस्तानी या उर्दू या हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री या उसके सीन के ऊपर, तो आपके क्या तासुरात हैं उसके हवाले से? आई थिंक सीन जितना अच्छा नजर आ रहा है उससे भी अच्छा है, लेकिन बहुत से सारे लोग, बहुत आर्टिस्ट काम कर रहे हैं जिनका बहुत अच्छा काम है। अगर वो भी थोड़ा और नुमाया हो जाए तो और अच्छा है। अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप कोक स्टूडियो में नहीं आते आप आर्टिस्ट नहीं हैं, ठीक है ना। और तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कुछ कोक स्टूडियो के आर्टिस्टों को मैंने लाइव गाते सुना है, तो फिर मुझे हैरत होती है कि ये कैसे इन्होंने आ गए। लेकिन जो 99% है, कोक स्टूडियो बहुत अच्छा प्रमोट करता है, अच्छे आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस करता है। जैसे अभी कैफी खलील आजकल कितने फेमस हो गए कोक स्टूडियो की वजह से। तो एक पाकिस्तान में यही मसला है कि अगर आप जब तक कोक स्टूडियो पे एज एन आर्टिस्ट फीचर नहीं होते, यू आर नॉट गोइंग टू गेट टू द नेक्स्ट लेवल दैट यू रियली नीड टू बी। इंडिया में यह है कि उनकी मार्केट इतनी बड़ी है कि वहाँ तो एक गाने पे 10 मिलियन व्यूज लाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। और बट द ओनली थिंग इज, एज अ पाकिस्तानी आर्टिस्ट टू गेट इनटू इंडियन इंडस्ट्री इस वक्त तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट मेरा ये गाना कहाँ मैंने इसका रिलीज 1 साल रोका हुआ था, बिकॉज टी सीरीज जो थी, जो आपने नाम सुना होगा, पाकिस्तान इंडिया का जो बहुत बड़ा रिकॉर्ड लेवल है, they wanted song and they told me that they will use that song। और फिर उन्होंने मुझे थोड़ा और लटकाया कहते हैं अच्छा अब हमने आप इसका एक बॉलीवुड मूवी के लिए सेलेक्ट कर लिया ये गाना। जैसे इट साउंड लाइक अफगान जलेबी, ओके द सॉन्ग। तो उन्होंने कहा ये कोई आयुष्मान खुराना है, उनकी कोई मूवी है, उसके लिए पिक हो गया है एंड ही लाइक्स इट टू एंड ऑल दैट। तो हम बड़े खुश थे, बट इट टुक अनदर 5-6 months और कुछ हुआ नहीं। फिर पता वही हुआ कि बेसिकली इस वक्त even though I'm an American Pakistani, just because I'm born in Pakistan, इस वक्त मेरा गाना इंडिया में रिलीज होना इम्पॉसिबल है। तो फिर मैंने इसको अपने ही चैनल से रिलीज कर दिया। मैंने कहा भाई बहुत हो गया, वी ट्राइड, मे बी एट सम अदर टाइम, जब टाइम इज बेटर और राइट, वील डू अनदर सॉन्ग। बट अभी मैं इसको टी सीरीज से वापस लेके अपने प्लेटफॉर्म पे चलाऊंगा। सही किया, बिकॉज द थिंग इज, आई मीन द सॉन्ग वंस गाना जब तैयार है, इट नीड्स टू बी लेट लूज। इट्स लाइक अ चिड़िया जिसको आप आजाद करें, जाने दें, उसको उड़ने दें, वो अल्लाह उसको कहाँ बिठाते हैं वो अल्लाह नोज बेटर। बिल्कुल। इसी बात को अगर मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछूं ना कि क्यों इतना मुश्किल है, आई मीन अगर इंडिया के अंदर पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो कि वो उसी जबान में गा रहे हैं, हिंदी उर्दू में, एंड वो लोग कोलैबोरेशन नहीं करना चाहते, तो आई अंडरस्टैंड, मगर एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट के लिए पाकिस्तान की मार्केट में घुसना इतना मुश्किल क्यों है? मिसाल के तौर पे आप तो फिर भी पेनिट्रेट कर पाए, राइट, मगर मैंने आपसे जिक्र किया था कि मोहम्मद रफी के जो ग्रैंड सन है उनसे मेरी मुलाकात हुई, जिनका नाम एहतशाम है, और उनके बहुत प्यारे बहुत खूबसूरत गाने उन्होंने गाए हैं, मगर कोई भी उसको सपोर्ट या पिकअप करने के लिए तैयार नहीं है। बेसिकली वो साहब जो हैं वो एक लिम्बो में। तो ऐसा क्यों है कि इतनी बड़ी मार्केट होने के बावजूद कोई ऐसी कोहेसिव जगह नहीं है वहां पर जहां पर एक आर्टिस्ट अपना अगर दानस्ती से अपना गाना लाए और वो गाना अच्छा है तो वो उसको वहां ब्रेक दें? ये अच्छा सवाल है। मुझे नहीं पता कि मेरे पास इसका कोई जवाब है। आई थिंक यू हैव टू गेट लकी, यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि मैंने बाय द वे नहीं सुना इनको, मोहम्मद रफ़ी साहब के ग्रैंडसन को, बट अगर उनके अगर वो मोहम्मद रफ़ी साहब की
जेनेटिक लिनिएज उनके पास है, तो ही मस्ट बी अमेजिंग, मोहम्मद रफी जी खान साहब, तो अगर उनका 10% भी इनके ग्रैंडसन में है, तो देन ही मस्ट बी एन अमेजिंग परफॉर्मर। U107 जी रहा हूँ संग तेरे, मर ही जाऊंगा बिन तेरे, चाहता हूँ ओ तुझको इतना, जैसे लाजमी है दिन को सवेरे। दूर जाओ ना जरा सा पास आओ ना, कहता हूँ तुमसे ही ये मैं, मुझे अपना बनाओ ना। ठहर जाओ ना, ठहर जाओ ना, दिल कह रहा पास आओ ना। ठहर जाओ ना, ठहर जाओ ना, दिल कह रहा पास आओ ना। It just comes down to being at the right place at the right time. तो मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये सिर्फ मैं यही कहूँगा, जो कि मेरी अप्रोच है, कि यू जस्ट कंटिन्यू टू बी कंसिस्टेंट। आप अपना प्रोडक्ट लाते रहें, आप अपना काम दिखाते रहें, और कुछ पता नहीं किस वक्त किसको क्या नजर आ जाए, एंड दैट विल टेक यू अप। मायूस ना हो, अगर आपने यही काम करना है तो इसके बड़े मरहले हैं, उनको तय करना पड़ता है। तो कंसिस्टेंटली काम करते रहें और अच्छा काम करते रहें, दैट्स ऑल। फोकस ऑन दैट। 107 आपके साथ। U107 मैं ढूंढता रहता तेरा निशान, दर बदर में फिरता यहाँ वहाँ, तू ही जाने तेरा है ठिकाना कहाँ। मैं भी न जानूं मुझको है जाना कहाँ। गुजारे पल जो साथ थे, आगे की करते बात थे, छोड़ेंगे ना कभी किसी को, बातें करते दिन रात थे। लगता है ये कल की बात है कि जब हम साथ थे। जीना गवारा है ना मुझे, है तू ही सहारा, मैं कैसे न चाहूं तुझे। U107 24/7 Washington DC से उर्दू रेडियो U107.net। Wake up, you sleeper. Arise, all you dreamers.
skies, darling. Look over the horizon. Look up to the heavens. Look on to the Savior. Because we are dreaming. And the day is hard to find. We're walking and sleeping. And we are flying blind. Open our eyes. Open our eyes. Because we are dreaming. And the day is hard to find. We're walking and sleeping. And we are flying blind. Open our eyes. Open our U107. आज नच ले, आज नच ले, आज नच ले, कुड़िया तू नच ले, आज 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 नच ले, कुड़िया तू नच ले, आज नच ले, आज नच ले, आज नच ले, कुड़िया तू नच ले, नखरे बगाना वे शर्माना, ताल मिला के नच ले, नच ले, आज नच ले, आज नच ले, आज नच ले, कुड़िया तू नच ले, आज नच ले, आज नच ले, आज नच ले, कुड़िए तू नच ले, नखरे बगाना वे शर्माना, ताल मिला के नच ले, नच ले, आज नच ले, आज नच ले, आज नच ले, कुड़िए तू नच ले, आज नच ले, आज नच ले, आज नच ले, कुड़िए तू नच ले। गोरा मुखड़ा अख मस्तानी, शोला तेरी अलड़ जवानी, गोरा मुखड़ा अख मस्तानी, शोला तेरी अलड़ जवानी, गोरा मुखड़ा अख मस्तानी, शोला तेरी अलड़ जवानी, मेरा दिल तू ले ले कुड़िए, सुन ले मेरी प्यार कहानी, मेरा दिल तू ले ले कुड़िए, सुन ले मेरी प्यार कहानी, आज नच ले, आज नच ले, आज नच ले, कुड़िए तू नच ले, आज 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 नच ले, कुड़िए तू नच ले, आज नच ले, आज नच ले, आज नच ले, कुड़िए तू नच ले, नखरे बगाना वे शर्माना, ताल मिला के नच ले, नच ले, आज नच ले, आज नच ले, आज नच ले, कुड़िए तू नच ले, आज नच ले, आज नच ले, आज नच ले, कुड़िए तू नच ले।
नच ले आजा नच ले कुड़िया तू नच ले आजा 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 नच ले कुड़िया तू नच ले आजा नच ले आजा नच ले आजा नच ले कुड़िया तू नच ले नखरे बगाना एवे शर्माना ताल मिला के नच ले आजा नच ले आजा नच ले आजा नच ले कुड़िया तू नच ले आजा नच ले आजा नच ले आजा नच ले कुड़िया तू नच ले नखरे बगाना एवे शर्माना ताल मिला के नच ले आजा नच ले आजा नच ले आजा नच ले कुड़िया तू नच ले आजा नच ले आजा नच ले आजा नच ले कुड़िया तू नच ले U107. Riding round with the music loud like a high school punk rock queen. But all the stars you're wishing on are really just bulbs on the string. What you think you want so bad really doesn't mean anything. I never should have walked you home. I never should have walked you home. You'd have been better off alone. I never should have walked you home. Back then everything was a game. To be young is to suffer and yet never really feel any pain. That comes later once you realize it's never the same. And all the stars above your bed are just plastic and double-stick tape. I never should have walked you home. I never should have walked you home. You'd have been better off alone. I never should have walked you home. When you think of how one thing leads to another, you can't help but wonder if you're gone a different road. I never should have walked you home. I never should have walked you home. I never should have walked you home. You'd have been better off alone. I never should have walked you home. When you think of how one thing leads to another, you can't help but wonder if you're gone a different road. I never should have walked you home. Yeah, I was your high school punk rock king. But all the things we thought were true didn't really mean anything. And the stars we were wishing on were really just bones on a string. I never should have walked you home. U107.
मिला दिल कह रहा तेरे बिना कैसे जिया तू ना मिला दिल कह रहा तेरे बिना कैसे जिया अब ढूंढूं मैं कहाँ पे तू ही लापता इन टूटी बारिशों ने यूं दी सजा ढूंढता हूँ इन खजाओं में मांग लूं मैं इन फिजाओं में तू ना मिला दिल कह रहा तेरे बिना कैसे जिया तू ना मिला दिल कह रहा तेरे बिना कैसे जिया आप सुन रहे हैं U107 कैसे हो पाकिस्तानी वॉशिंगटन से। आप सुन रहे हैं U107। अब सबको हमारा सलाम U107 खुशामदीद अब सबको हमारा सलाम। गाते रहे 107 U107 Standing there on the edge, ain't scared of what's ahead. Walking up like revenge. I was built for this time. Bleeding red like the sun, taking over everyone. Watch me as I overcome. I was built for this time. Keep the blood pumping. Keep the blood pumping. Keep the blood pumping. I was built for this time. Keep the blood pumping. You know I ain't stopping.
107 आपके साथ मैं ढूंढता रहता तेरा निशान, दर बदर में फिरता यहाँ वहाँ, तू ही जाने तेरा है ठिकाना कहाँ। मैं भी न जानूं मुझको है जाना कहाँ। गुजारे पल जो साथ थे, आगे की करते बात थे, छोड़ेंगे ना कभी किसी को, बातें करते दिन रात थे। लगता है ये कल की बात है कि जब हम साथ थे। जीना गवारा है ना मुझे, है तू ही सहारा, मैं कैसे न चाहूं तुझे। आजा मुझसे जुदा ना हो, खफा ना हो मेरी जान। डर लगता है अब मुझको सताना रुलाना यूं मेरी जान। तुम बिन रहना पड़ेगा ये सोचा न था, तेरे बिना जीना पड़ेगा ये सीखा न था। जो था वो मेरा खो गया, मैं हंसते हंसते रो गया। परवाह नहीं है तुझे मेरे साथ होना, तर वो हो गया। लगता है ये कल की बात है कि जब हम साथ थे। जीना गवारा है ना मुझे, है तू ही सहारा, मैं कैसे न चाहूं तुझे। आजा मुझसे जुदा ना हो, खफा ना हो मेरी जान। डर लगता है अब मुझको सताना रुलाना यूं मेरी जान। U107 24/7 Washington DC से उर्दू रेडियो U107.net U107. Now you know what you chose, and you feel it right down to your toes. You feel it, you feel it, you feel it, like the winter creeping in, frozen by the first cold wind. You know it,
107. हो इश्क ते आतिश दूहे बराबर हो इश्क ते आतिश दूहे बराबर ते कुछ इश्क दा है वधेरा आतिश साड़े कख ते कंडे साड़े दिल मेरा ओ आतिश नू पानी नाल बुझाइए ते इश्क दा दारू केड़ा यार फरीद ओते कुछ ना सुझदी जिथे इश्क लाल अडेरा इश्क लाल अडेरा Fire and love are together. There's no difference between each other. All they need is to ignite, however. But love has a light that burns all of my heart. If I was in my heart, burning for your love, then there's no complications in a hearts and minds. Whoa, whoa. U107.net.
come to know